एक छोटी सी प्रतिक्रिया है जो आपके मुखातिब कर रहा हूं। जहां तक माननीय रेल मंत्री का सवाल है, जांच प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जांच का स्वागत किया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर कोई भी निर्णय अनुचित रहेगा। जहां तक माननीय कानून मंत्री का सवाल है, वो मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है। अगर मेरी जानकारी सही है तो 8 मई को वो उच्चतम न्यायालय के सामने आएगा। अगर सरकार को कोई भी बात कहनी होगी, सरकार अपने लॉ ऑफिसर्स के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखे। I have a question, Mr. Will you take questions? Yes, I will take questions. On the railway minister, is it now? Are you all going to say that he had nothing to do with this? Or what is the Congress's defense of not wanting to take action? Because here is a clear case of what is seen as direct involvement. Well, Sunil, with due respect to all my friends in the media, may I very respectfully submit that unfortunately there are two parallel processes which are playing themselves out. There is a trial in the public domain and there is a trial or an investigation which has to go through an investigative process and ultimately culminate in a charge sheet before an appropriate court of law. Unfortunately or fortunately, it is the latter which determines innocence or guilt. So therefore, my request to all of you would be that since the Honorable Railway Minister has welcomed an investigation, let the investigation fructify. I don't think it is keeping in view with the canons of Indian jurisprudence to prejudge or predetermine issues. जहां तक नैतिकता का सवाल है, जो मामले फौजदारी से जुड़े होते हैं, जिनमें एक जांच प्रक्रिया को एक अदालत के सामने आरोप पत्र के रूप में दाखिल होना होता है और वो प्रक्रिया संवैधानिक है, वो प्रक्रिया कानूनी है, उस प्रक्रिया को हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे ऊंचा और अव्वल दर्जा देना चाहिए। मनीष जी, क्या उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है? जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पेशकश की है और जांच का स्वागत किया। देखिए, इस मामले के ऊपर जो प्रतिक्रिया मुझे देनी थी मैंने आपके समक्ष रख दी है। इसके आगे और इससे ज्यादा मुझे और कुछ अभी नहीं कहना है। Well, I think the Bharatiya Janata Party would be well served to refer to the statement of the NDA convener. The NDA convener, Mr. Sharad Yadav, I think articulated the position very succinctly. So therefore, it is not as if there is a united opposition. There is, well, I am not aware of the U or the V turn. I am only going by the statement which the convener of the NDA had made yesterday or earlier in the day. You see, unfortunately, if somebody, starts suffering from a disease called resignationitis, that they want everybody to resign, then that does not augur well for democracy. Running the parliament is not only the responsibility of the government. Every political party is an equal stakeholder in the democratic process. And unfortunately, we have seen that the principal opposition believes that disruption and obstruction is a legitimate parliamentary tactic. I think there is a need for them to introspect, to seriously think as to how and in what manner over the last 3.5 years
It has undermined the democratic process completely. लेकिन उनका कहना है कि हर एक घोटाला आपकी की सरकार में क्यों हो रहा है, चाहे वो जूती हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे आदर्श सोसाइटी कॉमनवेल्थ। देखिए, मुझे मालूम नहीं कि सवाल कौन पूछ रहा है, क्योंकि आप अंधेरे में हैं और मेरे चेहरे के ऊपर ये सब लाइट पड़ रही है। पर मैं जरूर ये उम्मीद करता हूं कि जिसने सवाल पूछा है वो वरिष्ठ पत्रकार है और वो ये भी जानते होंगे कि 1998 से लेकर 2004 तक कितने घोटाले हुए थे और उसमें एनडीए और भाजपा की क्या रुख रहा था। तो इसलिए दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले खुद अपना चेहरा अपने आईने में देख लेना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देते हैं लोग, लेकिन ये करना मंत्रालय से जांच चलती है जब तक। देखिए, जहां तक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का सवाल है, यूपीए की सरकार ने कभी किसी जांच प्रक्रिया में दखल अंदाजी नहीं की है और पिछले 9 वर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई ऐसी बात सरकार के सामने आई है जिसके ऊपर कार्रवाई करनी बनती थी, सरकार ने कार्रवाई की है। तो इसलिए जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। और मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में 2 समानांतर प्रक्रियाएं जरूर चलती है, पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी यह बात कही है कि जब धारा 19 और धारा 21 को इकट्ठे लिया जाए तो धारा 21 जो हर व्यक्ति को ये हक देती है कि वो बेगुनाह है जब तक उसका गुनाह न साबित किया जाए, उसको सर्वोच्च माना जाएगा। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि ये जो भारत की संवैधानिक प्रणाली है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको आप भी अपने संज्ञान में रखें।